Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions class 11th and 12th, where we find solutions of NCERT back exercises of physics, chemistry and biology on a single platform. And children, the question that you see on your screen is of chapter number 4 class 12th biology book, that is Principles of Inheritance and Variations. बच्चों आज हम fourth question discuss कर रहे हैं back exercise का, which is asking एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो जैसे मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस डिड्यूस किया था, वी विल ऑल्सो परफॉर्म अ क्रॉस हेयर. सो आई एम राइटिंग द सोल्यूशन चिल्ड्रन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं हम, एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर या एक ही जीन को कंसीडर कर रहे हैं, राइट. दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जाम्पल, as Mendel took two alleles for a character that is height. So he considered one character that is height. So I'm writing here that there were parents having contrasting pair of traits, that is one parent was tall and other was dwarf. एक parent tall था, दूसरा parent dwarf था. So what is the genotype of the parents? Let's write the genotype also कि इनके genes कैसे express होंगे in this form, right? Homozygous tall and homozygous dwarf. If I make the gametes out of it, अगर मैं इसमें से gametes निकालूं, so you know children that gametes जब बनते हैं तो meiosis होता है, तो chromosomes भी segregate कर जाते हैं and hence alleles भी segregate कर जाते हैं. So you can see that the two type of gametes formed by the one of the parents is capital T and other parent is small t. तो बच्चों जब ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गेमीट फ्रॉम मेल, लेट्स राइट दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, राइट. तो अगर मेल से एक गेमीट आ रहा है, फीमेल से एक गेमीट आ रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. सिमिलरली अगर यही गेमीट दूसरे गेमीट के ऑफ द अदर पेरेंट से फ्यूज करेगा तो इट विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी. Again, if you fuse other gamete of male and one of female, you'll get capital T small t. And similarly, so basically you can see हमें सारे के सारे combination से एक ही तरह का result मिला है, and this result that we have obtained is nothing but F1 generation. F1 is filial one generation. जब आपने pure form of parents से monohybrid cross start किया है, so the first generation that you have obtained here is filial one generation. Now we need to obtain the F2 generation as well. सो F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? F1 को सेल्फ हिब्रिडाइज कर देते हैं. सो बेसिकली दिस इज सेल्फ हिब्रिडाइजेशन ऑफ F1 विद इटसेल्फ, राइट. तो F1 का प्रोडक्ट हमें पता है क्या था. व्हाट वाज द प्रोडक्ट? कैपिटल T स्मॉल t. सो इट मीन्स वी हैव टू क्रॉस इट अगेन विद कैपिटल T स्मॉल t. बट चिल्ड्रन वी नीड टू फॉर्म द गेमीट्स नाउ. हमें गेमीट्स बनाने होंगे. सो इन दिस केस द टाइप ऑफ गेमीट्स फॉर्म्ड विल बी capital T small t and capital T small t. Basically chromosomes are segregating, alleles are also segregating, और उसी से gametes बनते हैं because meiosis होता है at the time of gamete formation. So you know the basics, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है? F2 generation का progeny obtain करनी है. तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? We'll make a Punnett square है. We'll make a Punnett square, right? So let's say this is a Punnett square. और हम क्या करेंगे? Male type of gametes और female type of gametes को अलग अलग साइड्स पे ऑफ द पुनेट स्क्वायर विल प्लेस देम. सो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफ वन पेरेंट एंड दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी गेमीट्स ऑफ अनदर पेरेंट. सो एज यू कैन सी अगर हम इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ फर्टिलाइज कराएंगे, सो विल गेट अ टॉल टाइप ऑफ प्रोजेनी. बट इफ आई क्रॉस दिस गेमीट विद दिस स्मॉल टी, आई विल गेट hybrid, right? Again this small t crossed with this t, I'll get capital T small t. Again this small t with this small t, I'll get a homozygous recessive progeny. So basically children हम यहाँ पे देख सकते हैं I got a pure tall, two hybrids and a pure recessive form. तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? उसकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो लिख सकती हूँ. सो बेसिकली बच्चों जीनोटिपिक रेशो होती है वो रेशो जिस टाइप के जीन्स आपको नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सीइंग हेयर दैट कैपिटल T small t and small t, right? These are the type of genes that you can see. So you can clearly see कितने कैपिटल T हैं? 1. कितने कैपिटल T small t हैं? 2. and how many small t are there? 1. तो genotypic ratio इस particular monohybrid cross की जो हमने obtain की, that is 1:2:1. अब अगर हम इसकी phenotypic ratio पर चलें, phenotypic ratio is कि हमें ये organism दिखेगा कैसे बाहर से. अगर कैपिटल टी टाइप का जीन है
तो भी ये हमें टॉल ही दिखेगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का जीन है तो भी हमें ये टॉल ही दिखेगा, लेकिन अगर स्मॉल टी है उस केस में हमें ये बाहर से कैसा दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने कैपिटल टी और स्मॉल टी आए हैं, टोटल 3। सो बेसिकली चिल्ड्रन जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट विल बी गिवन बाय टॉल इज टू ड्वार्फ। टॉल इज टू ड्वार्फ मीन्स 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, राइट। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट बच्चों अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो हमें इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस डिड्यूस करना है कि मैंडल ने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट आई एम राइटिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडल सेड दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल्स में डिस्क्रीट मतलब अलग सी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और यूनिट्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। ही नेवर यूज द टर्म जीन, जीन टर्म केम लेटर ऑन, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर्स में अकर करते हैं, ये भी हमें पता है दैट अलील्स आर प्रेजेंट इन अ जीन सो दैट मेक्स अप 1 पेयर, ठीक है। तो कैरेक्टर्स अकर इन अ पेयर ऑफ अलील्स बेसिकली। थर्ड पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था कि इन अलील्स में से एक अलील होता है जो डोमिनेटिंग होता है, दैट इज डोमिनेंट अलील, एंड द अदर फॉर्म ऑफ अलील दैट वी ऑब्टेन इज अ रिसेसिव अलील। सो लेट्स एनलिस्ट द लॉज ऑफ डोमिनेंस पोस्टुलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units. Discrete means distinct, alag si units. Discrete units called factors. Second is factors occur in pairs. Factors कैसे occur करते हैं, pairs में, right. Factors occur in pairs. And lastly, out of these factors one dominates the others. One dominates the other, right? Clear? So I hope बच्चों आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ है, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया है। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु NCERT Solutions 11th and 12th, and I'll see you in the next session.